Good morning, students. Now, lesson number 15. Open your textbook. Lesson number 15, 187. Now, activity 15.4. टेक एन एम्प्टी जाम बोतल. क्या लेना है हमें? एक जाम की खाली बोतल जो होती है वो लेनी है. मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वैसे सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके. टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड slightly bigger in size than a mouth of the bottle. Piece a hole in it so that a metal paper clip could be in instant open out. पेपर क्लिप इज शोन अ फिगर, जैसे कि हमें 15.4 में दिखाया गया है वैसे. टू कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम सॉइल about 4 centimeter 1 centimeter each. Hang them on the paper clip as shown. Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it. Figure 15.4. Charge in refill and touch it with the end of the paper. यहाँ पे लिया है, बोतल है, फिर वो इसमें हमें एक पेपर क्लिप या कार्डबोर्ड में फिर क्या करना है, वो अच्छे से स्मॉल वाला होल करना है, जैसे 15.4 में हम दिखाया गया है. फिर 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम जो पट्टी आती है वो पेपर क्लिप में जैसे हमें ऐसे 15.4 में दिखाया गया है वैसे हमें वो समझना है. ऑब्जर्वेशन व्हाट हैपन्स, फिर वो इसमें क्या होता है वो हमें अच्छे से देखना है. इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉल स्ट्रिप्स, उसमें क्या कोई भी कुछ होता है वो हमें देखना है. टच नाउ अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप. डू फॉल स्ट्रिप्स behave in the same way in all cases? Can on this appearance be used to detect whether a body is charged or not? Can you explain why is the foil strips repel each other? फिर हमें वो उसमें देखना है कि वो कैसे होता है. जैसे कि द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसेल द सेम चार्ज ऑफ द चार्ज रिफिल टू द पेपर क्लिप. रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एल्यूमिनियम की वो है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है. द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलरली चार्ज रिपेल each other and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is known as the electroscope. क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप. जैसे कि होता है कि what is the use of an electroscope? तो an electroscope is used to detect whether a body is charged or not. Thus, we find the electric charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. Touch our end of the paper clip gently with hand. You will find a charge in the foil strips. They sum back to their original state. Repeat charging of foil strips and touching the paper clip. Every time you will find that the foil strips collapse and soon as the touch the paper clip with hand. Why does it happen? The reason is that the foil strips lose charge to the earth through your body. We say that the soil strips are discharged. The process of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing. Earthing is provided in buildings to protect us from electric shocks due to any luggage of electric current. जैसे कि हमें वो कोई भी ऐसे होता है, या फिर यहाँ पे यह है कि फॉइल स्ट्रिप्स, जैसे कि हमारे उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग. जैसे कि व्हाट इज एन अर्थिंग? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ
चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। जैसे कि 15.5 में दिखाया गया है द स्टोरी ऑफ लाइटिंग। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटिंग इज इन टर्म्स ऑफ द चार्ज प्रोडक्ट्स बाय रबरिंग। जैसे कि यू लर्न इन क्लास, हमने आगे के जो स्टैंडर्ड में सीखा था कि that during the development of a thunderstorm, the air currents move upward while the water droplets move डाउनवर्ड। जैसे कि हमने आगे में दिखा था कि कोई भी एयर चीज़ है या फिर वो वाटर है जो अपवर्ड्स यानी कि जो नीचे आता है, द दिस vagaries in movements cause a expansion of charge by a process not yet completely understood. The positive charge collect near the upper edge of the clouds and the negative charge element near the lower edge. There is accumulation of positive charge near the ground also. When the magnitude of accumulated charge become very large, the air is normally a poor conductor. Electricity is no longer able to resist their flow. Negative and positive charge meet, producing sparks of bright light and sound. This is sparks and lightning। 15.5 में हमें जैसा दिखा दे रहा है, the process is called an electric discharge. The process of electric discharge can occur between two or more clouds। जैसे कि वो चार्ज है वो एक से क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, क्या है, क्लाउड्स एंड अर्थ के है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटन्ड बाय लाइटिंग लाइक एक्सीडेंट पीपल डिड नाउ। वी अंडरस्टैंड वी बेसिक फिनोमिना। Scientists are trying hard to improve your understanding. However, lightning strikes could destroy life and property. It is therefore necessary to take measures to protect ourselves. क्या है, हमें वो कुछ भी ऐसे हमें भी अपने therefore necessary take measure to protect ourselves। जैसे कि लाइटिंग सेफ्टी। ड्यूरिंग लाइटिंग एंड अंडर थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। क्या है, लाइटिंग थंडर स्टॉर्म दरमियान कोई भी ऐसी ओपन प्लेस है वो हमारे लिए सेफ नहीं होती है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफ प्लेस। क्या है, हमें कोई भी ऐसे प्लेस पे पहुंचना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर will wait for some time before coming out of the safe place। हमें कैसी भी कोई भी ऐसी कुछ भी होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे होए तो हमें क्या करें, हमें सेफ जगह से ही हमें बाहर निकलना चाहिए। जैसे कि वेंडिंग अ सेफ प्लेस। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। क्या है, उसमें सेफ प्लेस है वो। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और बस, यू आर सेफ इनसाइड द विंडोज एंड द डोर्स ऑफ व्हीकल सूट। क्या है वो, जो बंद है तो हम उसमें भी वो हम अच्छे से रह सकते हैं। डज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म्स आउटसाइड। Open vehicles like motorbikes, tractors, construction machinery, open cars are not safe। ये सभी सेफ नहीं है। Open fields, tall trees, shelters in parks, United players do not protect or from lightning strokes। इसमें से वो हमें लाइटिंग स्ट्रोक से उसमें से ये हमें बचाता नहीं है। Carrying umbrella is not a good idea at all during thunderstorms। अम्ब्रेला भी है वो हमें अच्छे से वो हमें सेफ नहीं रखता है। किस में,
किसमें हमें वो स्टेप है? थंडरस्टॉर्म्स में, थंडरस्टॉर्म्स में। ओके, जैसे टेक्स्ट बुक में कहा गया है वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, जैसे कि फॉरेस्ट में कोई ऐसे ट्रीज है जिसे हमें वो करना चाहिए। In no shelter available you are in open field. Stay far away from all trees. Stay away from pole or other metal objects. Do not lie on the ground. क्या करना चाहिए हमें? कोई ऐसे ट्रीज के या फिर ऐसे कोई स्टॉक्स है या फिर कुछ भी है उससे हमें दूर रहना चाहिए। योर हैंड्स योर नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स, जैसे 15.6 में दिखाया गया है। दिस पोजिशन विल मेक योर स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्टक। ओके, नाउ नेक्स्ट, inside the house. Lighting can streaks are telephone cords, electric wires, and metal pipes. Do you remember? Lighting is the electrical discharge. हमें क्या करना चाहिए वो, जैसे कि during a thunderstorms, connect with this should be avoided. It is safe for to use mobile phones and car lens phones. However, it is not wise to sell a person who is receiving your phone thought a wire phone. क्या हमें सिर्फ सेल फोन या कुछ भी है वो हमें उसे सेफ नहीं होता है जब थंडर स्टॉर्म। Bathing should be avoided during thunderstorms to avoid contact with running water. या फिर थंडर स्टॉर्म्स है तो हमें क्या करना चाहिए? वाटर को भी हमें टालना चाहिए कि हमें वो टच ना कर सके। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस लाइक कंप्यूटर्स, टीवी एक्सेट्रा should be unplugged. Electrical lights can remain on, they do not cause any harmful. जैसे कि कोई भी ऐसे होता है थंडर स्टॉर्म्स, तो हम जैसे कि पानी या फिर कुछ टच नहीं करते हैं ना, वैसे। जैसे कि लाइटिंग कंडक्टर्स। लाइटिंग कंडक्टर्स इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। क्या है वो? हमें कुछ भी ऐसे बिल्डिंग्स है जिससे हमें वो बचाता है। A metallic rod taller than the buildings included in the walls of the buildings during the constructions. One end of the rod and kept out in the air and the other is buried deep in the ground. जैसे कि 15.7 में दिखाया गया है वैसे। The rod provides easy route of the transfer to electric charge to the ground. ऐसे कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है तो हमें वो थंडर है तो वो क्या कहाँ पे चले जाते हैं? उसमें ऐसे का होता है कि वो ऐसे ग्राउंड में चले जाती हैं। क्या? इलेक्ट्रिक चार्जिंग। द मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाटर पाइप्स ऑफ द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट us to an extent but do not touch them during the thunderstorm. जो ये कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी ऐसे कुछ भी जैसे कि वाटर पाइप है या कुछ भी और है तो उसे हमें टच नहीं करना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी सभी एक्सप्लेन किया है। थंडरस्टॉर्म या कुछ भी और ये जैसे इसमें कहा गया है वैसे मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ आपको जितना एक्सप्लेन किया है उसमें से जो वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर या कुछ भी और है तो वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।